Hello everyone. In today's class, we are going to start with practical number 8. It is about OSPF, that is Open Shortest Path. Uh, in this practical, we have to make three routers and their network using OSPF. The same layout, same network design, which we were drawing for practical number 6 and 7 same we have to draw again, and in this connectivity आप कैसे establish करेंगे using OSPF. Let's see what is OSPF first of all. OSPF stand for Open Shortest Path First. It is a dynamic routing protocol which is used in large network to automatically find the best path for sending data. Okay, ये इसका main definition है कि ये best path find out करेगा. Okay, and it also belong to the link state routing protocol. See, it learns the network map, share the updates with other routers, and calculate the shortest and fastest path. And automatically, it will adjust if a link goes down. Okay, so it is, you can say we don't have to do the manual routing, and it does its job fast and smart way. Okay, so let's see the practical implementation. So press control. We'll take the router first. That is, I'm taking the standard RT router. Okay. And then I'll take a switch, three switches. Then we'll take systems. Then the connectivity. You have to simply press control and then आप control एक बार press करके बार बार आपको फिर वहां से कंपोनेंट उठाना नहीं होगा. You can directly मैन्युअली आप उसको ये कर सकते हैं. ओके, कनेक्टिविटी कर लोगे आप, नहीं तो बार बार आपको वो उठाना पड़ेगा वहां से. Then we'll give the IP addresses. Okay, so this is, you can see here. Okay, so इस पे हम config में जाएंगे. 00 पे हम हमारा standard जो IP address है will give that 1 and इसको copy करते हैं. Then 0 पे यहाँ पे हम देंगे this is our 40.40.40.1. correct. Then मैं ये system में जाके यहाँ पे फटाफट ये भी कर लेते हैं. So this is 2 and the default gateway is 1. Okay, then for this one, this is 3 and the default gateway is 1. Then for this one, desktop, this is 4 and the default gateway is 1. Okay, तो ये हमारा नेटवर्क सेटअप हो गया है. अभी हमने यहाँ पे आईपी दी है, यहाँ पे अभी देखते हैं. This is 02, whereas this side it is 03 and this is 00. Okay, so config 00 will give, turn it on. This is our 20.20.20.1. We'll copy this. Then this side, this इसको हमने क्या दिया था 40.2, correct. And this is this, whereas serial will this give this यहाँ पे क्या देंगे 50.50.50.1. ओके, ये हो गया. अब इसको पीसी को आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे. So this is 22 and your default gateway. Then PC3, your desktop. Here you will write 3. Then this. कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, बिकॉज सेम 3 प्रैक्टिकल में यही कॉन्फ़िगरेशन आप फॉलो कर रहे हो. ओके, ये हमारा पीसी यहाँ पे सेटअप हो गया है. अब यहाँ पर दिस इज SC20, सो विल गिव this is 50.50.50.2. Then fast Ethernet, turn it on. This is our 30.30.30.1, your default gateway. Then यहाँ पर आप
desktop, give 30.30.30.2 your this, and your default gateway will be 30.30.30.1. Okay, then यहाँ पर again this is 3, whereas this one is 1. यहाँ पर again for this system it is 4, your default gateway is 1. Okay, done. So ये connectivity हमने कर ली. अब हमको क्या करना है? We have to click on router, then we have to go on CLI. अब यहाँ पर कर्सर रख के होप सो दिस इज विजिबल. मैं ये राउटर, हमारा जो इनिशियल राउटर है उस पे हूँ मैं. यहाँ पे CLI में मैंने प्रेस किया है. देन अगेन मैं यहाँ पे यू कैन सी योर राउटर कॉन्फ़िग इफ. ये जो इफ है इससे आपको बाहर आना है. सो फॉर दिस यू विल राइट एग्जिट. ओके, आपको कमांड हमेशा यहीं पर आना है. ओके, राउटर कॉन्फ़िग के उसमें वो रहना चाहिए. सो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे राउटर OSPF 1. ओके, अब ये 1 क्या है? ये 1 जो है ये ऑटोनोमस नंबर है, एक इंटीजर आइडेंटिफायर है जो आप बता रहे हैं कि हाँ ये हमारा एक नेटवर्क है. ओके, यू कैन गिव एनी नंबर हियर. इन दिस केस आई हैव चोजन 1. आप 1 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, तो आपको वो नंबर याद रखना होगा. ओके, देन प्रेस एंटर. अब ये राउटर में चला गया है. देन यू विल राइट नेटवर्क. हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क है उसका 10 पॉइंट दिस. देन यू विल राइट योर सबनेट. वाइल्ड कार्ड इसे कहते हैं. ये इससे क्या होगा? एरिया 0. सी, नेटवर्क आप बता रहे हैं कि आप कौन से नेटवर्क को आप OSPF में ऐड कर रहे हैं. तो उस नेटवर्क में हमने यहाँ पे ऐड किया है 10 से शुरू होने वाले जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो उसको ऐड करेगा. ओके, जहां पर भी हमने 0 लिखा है मींस इट इज फिक्स्ड. ओके, यू कैन नॉट चेंज दैट. वेरएज जहां पे 255 लिखा है मींस वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, तो 10 पॉइंट कुछ भी IP एड्रेस हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा. बात समझ में आया? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया 0? एरिया 0 इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ योर नेटवर्क. ओके, अगर आपने 1 दिया तो वो ब्रांच के हेड्स को क्रिएट करेगा. ओके, तो एरिया 0 मीन्स एक वो बैकलाइन क्रिएट कर रहा है कि सारा कनेक्टिविटी यहीं से होगा. ओके, बैकबोन है वो. इसको एंटर करना है. ये हो गया. अब क्या? यहाँ पे 10 हो गया. अब 10 होने के बाद you have to give 20, our second network. Then likewise you will give 20 के बाद you will enter 30, and then 40, and lastly हमारा जो लास्ट नेटवर्क है that is 50. ओके, तो ये हमारा IP एड्रेस है जो हम अलाउ कर रहे हैं. वेर एज दिस इज योर वाइल्ड कार्ड फॉर दिस IP. ओके, वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि आप ये फिक्स रख रहे हो. पहला जो डिजिट होगा वो फिक्स होगी, बाकी जो भी होगा वो आप बता रहे हो कि कोई भी नंबर होगा 255 तक, दैट विल बी अलाउड. ओके, वो उसको एक्सेप्ट करेगा. देन इससे बाहर आना है. यू हैव टू राइट एग्जिट. ओके, तो ये उससे बाहर आ गया. तो ये हमारा फर्स्ट राउटर हमने कर लिया. ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेकेंड राउटर. यहाँ पे भी हम CLI में जाएंगे. नाउ अब क्या करेंगे? वापस प्रेस एंटर, एग्जिट, उससे बाहर आना है. देन अगेन यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? राउटर OSPF and 1. Okay, then उसके बाद you will write network. You will give again the same IP addresses which we have given there. Okay, सारा आप वहां पर यहाँ पर वापस लिखना होगा आपको. वाइल्ड कार्ड एंट्री स्पेस देना है. एरिया 0 द बैकबोन. ओके, ये 10 हो गया. अब इसके बाद you will give for this is 20. Then next will be 30, and then 40, and then next would be
50. ओके, देन प्रेस एक्सिट, EX लिख के बाहर आ जाना है। ओके, वापस EX लिखेंगे तो वो पूरा बाहर आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन से। सो ये सेकंड राउटर भी हमने कर लिया। अब थर्ड राउटर पे करते हैं। सो यहाँ पे भी CLI में जाएंगे, यहाँ पर इफ में है वो, तो इफ से बाहर आना है। सो उसके लिए यू विल राइट EX। अगर वो अनेबल मोड में नहीं रहेगा, सो यू विल बी राइटिंग EN। ओके, सपोज मैं यहाँ पे EX लिख के आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, ये अनेबल मोड में नहीं है। ओके, सो इसको कैसे करेंगे? यू विल राइट हियर config t, तो वो config टर्मिनल में चला गया। ओके, देन अब यहाँ पे हम लिखेंगे वापस हमारा राउटर OSPF1, देन सारे नेटवर्क्स को आपको यहाँ पे ऐड करना है। नेटवर्क दिस इज 10.0.0.0, 0.255, 255, 255, देन योर एरिया 0, द बैकबोन 10 हो गया। अब 10 के बाद यू विल गिव योर 20, then you will give 30, then again 40। सिंपली अप की प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। यू डोंट हैव टू पूरा वो बार बार टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, 50, देन एक्सिट, एक्सिट, ये हम उनसे बाहर आ गए। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया है। ओके, अब क्या करेंगे? अब पिंग करेंगे। यहाँ से हम दूसरे नेटवर्क में जाएंगे। सो आई राइट पिंग 20.20.20.1। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर ये कनेक्टेड है। मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ। I'll write ping 10.10.10.2. You can see it is fully connected. Okay, so this is how we can create a connectivity using OSPF. Okay, आप मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, आपको राउटर पे क्लिक करना है। यू हैव टू गो टू CLI। अगर वो अनेबल मोड में नहीं है यहाँ पर, सो यू विल राइट EN एंड देन प्रेस एंटर, देन यू विल राइट config t, एंड देन अपना जो कमांड है वो यहाँ से शुरू होता है, राउटर OSPF1। वन इज अ आइडेंटिफायर। ओके, देन उसके बाद आपको सारे नेटवर्क को ऐड करना है। दिस इज द एडिंग ऑफ 5 नेटवर्क है हमारे पास, तो हमने सारा नेटवर्क ऐड किया। नेटवर्क हमारा 10 पॉइंट जो है वो एरिया 0 इज द बैकबोन। ओके, नेटवर्क का नेटवर्क विद द वाइल्ड कार्ड। ओके, ऐसे आपको सारा हर एक राउटर में आपको यही प्रोसेस करना है और ऐड करना है। तो ये ऐसे आप OSPF को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।